السلام علیکم، یہ ہے ایئر وائی نیوز، میں ہوں رافعہ اوان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مہنور ندیم۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں کرونا وائرس نے تباہی مچا دی، 24 گھنٹوں میں 23 مریض زندگی ہار گئے، 7678 نئے کیسز کی تصدیق، 43 مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک۔ سندھ میں 24 ٹیسٹس میں سے اومیکرون کے 21 کیسز سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تصدیق، کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 45% سے بڑھ گئی، اسلام آباد میں 19، لاہور میں 18، راولپنڈی میں 15.5 اور حیدرآباد میں 17% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کا کورونا کی شرح زیادہ والے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ، اسلام آباد میں مزید 7 کالجز اور 5 سکولز بند کر دیے جائیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے ڈپٹی کمشنر کو سفارش کر دی۔ تاکہ بتایا جائے کہ ملک سارے لوگوں نے اسی طریقے جب سے یہ آئے ہر سال مہنگائی ملک میں آئی کون ہے؟ سندھ میں کرونا کی شرح سب سے زیادہ، بے احتیاطی اس سے بھی زیادہ۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے عوام سے ماسک پہننے کی التجا کرنے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ لاڑکانہ میں جلسے کے دوران مسلسل کھانستے رہے، ساتھ کھڑے جیالے بھی کھانس کھانس کر ساتھ دیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ نے تو ماسک نہیں پہنا، لیکن ساتھیوں نے ڈر کے جیبوں سے ماسک برآمد کیے اور منہ ڈھانپ لیا۔ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے مکمل امن لائیں گے، امن کے لیے بہایا گیا شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کے دورے میں خطاب، ISPR کا کہنا ہے آرمی چیف نے بہادر قبائلیوں سمیت پاک فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سپہ سالار کو سیکیورٹی صورتحال اور پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ لاہور دھماکے کے بعد وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس، DGIB اور FIA کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تحقیقات کے دوران لاہور دھماکے کے ملزمان کا گھیرا تنگ، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 2 مبینہ سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا، نامعلوم مقام پر منتقل، پوچھ گچھ جاری۔ دھماکے کے بعد سٹالز پر لوٹ مار کا بھی انکشاف، بھگدڑ کے دوران 3 لاکھ روپے اور پرائز بانڈ لوٹ لیے گئے۔ پرائز بانڈ سٹال کا مالک عبداللہ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ سٹال لاوارث دے کر ایک شخص پرائز بانڈ اٹھا کر چلتا بنا۔ دھماکے میں جاں بحق 9 سالہ ابصار کی مظفر آباد میں تدفین، نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں اہل علاقہ کی شرکت۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ خاص مقاصد ہیں۔ طالبان TTP کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے۔ اسلام آباد میں ہمارے کانسٹیبل منور جو ہیں وہ شہید ہوئے، 2 دہشت گرد TTP نے قبول کیا۔ لاہور میں انارکلی بازار دھماکے کے پیچھے خاص مقاصد ہے، وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ شیخ رشید کی سینٹ میں اظہار خیال۔ ایوان کو بتایا طالبان کے ذریعے قلعدم TTP سے مذاکرات ہو رہے تھے، اسلام آباد میں پولیس اہلکار کو شہید کر دیا گیا۔ قلعدم تحریک طالبان نے حملہ آور بھیجنے کا اعتراف کیا۔ PDM مارچ پر بات کرتے ہوئے کہا فضل الرحمان شوق سے آئے، ہم کمر بستہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ فضل الرحمان کو بلاول کو بھی ساتھ لانے کا مشورہ دے دیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، شاہ محمود قریشی بولے ان لوگوں سے میری بات ہضم نہیں ہو رہی، دل ملائے نہیں، ماضی میں انہوں نے عدلیہ پر حملے کیے۔ احسن اقبال کا رد عمل، کہا شاہ محمود کی تقریر سے لگا وہ خود کو عمران خان کے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ معیشت پر حکومت کو براہ راست مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ حماد اظہر کا جواب، بولے ہم نے معیشت کو اس مشکل سے نکالا جو آپ چھوڑ گئے تھے، کیا آپ 20 ارب ڈالر کا خسارہ بھول گئے؟ پاکستان کی فلم انڈسٹری بحال ہو رہی ہے، فلاپ فلمیں لندن جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں رانا شمیم کے بیان حلفی پر
नवाज शरीफ के घर पर दस्तखत हुए, चार्ल्स केथरी ने तस्दीक की। शरीफ फैमिली को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। वफाकी वजीर मुराद सईद का स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त, कहा कायद हिज़्ब इख्तलाफ और दर्जनों अरकान बदعنوانی के संगीन जराइम में मुलविस हैं। अपोजिशन लीडर खुद जमानत पर हैं, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के जमानती भी हैं। फरार की साजिशों के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम करें। मुशीर एहतजाब शहजाद अकबर ने कहा नवाज शरीफ लंदन से बैठकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। पहले साकिब निसार की जाली ऑडियो और फिर राना शमीम का बयान हलफी। सारी साजिश के मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। हर डिवीजन में इंशाल्लाह अपना किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, किसानों को इश्यूज को तवज्जो दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्क गिर किसान मार्च, बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा ज़राई मईशत बचाएं और इमरान खान को भगाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में मार्च का आगाज़ किया। कहते हैं 24 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर नजर आएंगे। हम इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इस नाअहल हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। जब से ये आए हर साल गंदम, चीनी, कपास पैदावार कम होती जा रही है। वज़ीर आज़म खुश आमदियों का टोला कहता है पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। आसिफ अली जरदारी, सिंध तुम्हारे बाप का सूबा नहीं, लूट मार और करप्शन का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में ललकार, कहा सिंध वालों आसिफ अली जरदारी से जान छुड़ानी है तो ऐलान जंग कर दो। हमारी आपस में नहीं, एक बहुत बड़े डाकू से जंग है। सिंध का वो बहुत बड़ा डाकू बिलावल हाउस में रहता है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का सिंध से खात्मा कर देंगे। इनकलाब लाड़काना से आना है और यहीं से शुरू होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का जवाब, कहा इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से घबराकर अली जैदी को आज़ाद छोड़ दिया। इमरान खान साहब, अली जैदी जैसों से बात नहीं बनेगी। आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी से इमरान खान अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मुल्क बन गया। इमरान न्याजी, लोगों की हाय सुनो। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गंदम, चीनी और खाद बहरान पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि माफिया का काम है। माफिया वज़ीर आज़म हाउस में आपके इर्द गिर्द है। बनी गाला से नीचे उतर कर देखें, अवाम की आंखों में खून उतर आया। वफाकी दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर दूर 23 लोग मर गए। सानिया मरी के वक्त बुज़दार साहब तंजीम के इजलास में थे। इस मामले पर किसी को मट्टी डालने नहीं दूंगा। नून लीग चैन से नहीं बैठेगी जब तक सानिया का असल जिम्मेदारान का तयन नहीं होगा। जब लंदन से हम अलहदा हुए थे और मेरी खुशफहमी ये थी कि इंशाल्लाह हम अब MKM को पहले जैसी प्योर मिडिल क्लास आम आदमी, खालिद मकबूल के जो बल्दियाती दौर था 4 साल का, उसमें उनकी कारकर्दगी नाअहल तरीन, नाकाम तरीन, बदतरीन। खुशफहमी थी लंदन से अलहदगी के बाद मिडिल क्लास जमात बना लूँगा। खालिद मकबूल का बल्दियाती दौर बदतरीन था। MKM बहाली के सरबराह फारूक सत्तार का ARY न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। कहते हैं 6 सालों से मेरा लंदन से किसी किस्म का कोई राबता नहीं। नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी से ऑफर्स आई लेकिन मैं नहीं गया। करप्शन में पीपल्स पार्टी A टीम तो MKM के कुछ लोग B टीम हैं। मुझे डमी सरबराह बनाना चाहते थे जैसा कि अब खालिद मकबूल हैं। GDP अगर ग्रोथ 5.5% या 5.3% जो भी हुई है, which is fine, ये ग्रोथ हुई है, लेकिन किचन बजट जो है वो गरीब लोगों को मार रहा है। ये बात दुरुस्त है कि इस बार एक्सपोर्ट बढ़ी है। PTI हुकूमत की बेहतर मौशी कारकर्दगी का नून लीग के साबिक वजीर खजाना का एतराफ़। मिफ्ता इस्माइल का कहना है शराय तरक्की 5.4% होना दुरुस्त है। बरामदात भी बढ़ी हैं लेकिन गुर्बत में कमी नहीं आ सकी। कराची में तूफानी हवाओं ने शहरियों की हवाइयाँ उड़ा दी। हादसात में 5 अफराद जम बहक और 5 जख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलबई और रंगी टाउन, बल्दिया, मॉर्च, गोट्स, पार्को रोड और दीगर इलाकों में तबाही। कहीं छतें तो कहीं दीवारें गिर गईं। दरख्त और बिजली के खंभे गिरने के बाद के वाक़यात। लियारी बिहार कॉलोनी में इमारत की 7वीं मंजिल का ज़ेर तामीर हिस्सा गिर गया। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन निज़ाम भी मुतासर। बेशतर इलाकों में बिजली बंद। महकमा मौसमियात का कहना है हवाओं की शिद्दत 26 नॉटिकल मील फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई।
जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात। जस्टिस आयशा सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। वजारत कानून और इंसाफ ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं। गुजरांवाला में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने प्रियंका कुमारा कत्ल केस के पहले मुल्जिम को सजा सुना दी। मुल्जिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुल्जिम अदनान ने श्रीलंकन शहरी का कत्ल दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर तशहीर की थी। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल कर रही है। 2 साल में मकबूजा कश्मीर में 2000 से जायद शहादतें हुई। लीगल फोरम कश्मीर के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेट्रोपॉलिटन पुलिस के वॉर क्राइम यूनिट को शवाहिद फराहम कर दिए। भारतीय आर्मी चीफ वजीर दाखिला की कश्मीर में जंगी जराइम पर गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। 22 रोज से सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं हुक्मरान मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देना चाहते। ये सूबे और वफाक में बैठी हुकूमतों का वतीरा है। कराची ने 35 साल जबर के दौर में गुजारे, अब जमात इस्लामी शहर की क़यादत करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं सड़कों पर बैठने से कुछ नहीं होगा, असम्बली में तजावीज़ दें, 2001 का कानून बहाल नहीं हो सकता। घर में अभी जब उस दिन शाम को 6 बजे के करीब लाइट ख़राब हो गई थी तो इसने इसको फरहान नामी जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिशियन है इसको बुलाया था अपनी लाइट को ठीक करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन इस घर में अंदर दाखिल हुआ, दरिंदगी का मुजाहरा किया है कि इसने पहले उस खातून को मारा है और उसके बाद उसके साथ जिना किया। कराची के इलाके लियारी में मुबैना तौर पर लाश का रेप किया गया। पुलिस ने बताया मुलजिम ने एक घर में खातून को कत्ल किया, फिर लाश की बेहुरमती की। मुलजिम के खातून के घर दाखिले की सीसीटीवी भी सामने आ गई। मुलजिम इलेक्ट्रिशियन है और घर में बिजली का काम करने आया था। गिरफ्तार इलेक्ट्रिशियन फरहान का घिनौने जुर्म का एतराफ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रोडक्शन टीम बैकअप से ये कोशिशें हैं एंड शो मस्ट गो ऑन। PSL सीजन 7 की ट्रॉफी की रूनुमाई। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। कौमी लीग की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने सीजन 7 के लिए नई किट मुतारिफ करा दी। किंग्स की जर्सी का रंग सीजन 7 में भी नीला और लाल होगा। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की नई किट में वीडियो को शायकीन ने खूब पसंद किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम का पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए पैगाम, कहते हैं इस बार शायकीन PSL मैचेस HD क्वालिटी में A स्पोर्ट्स पर देखेंगे। तमाम मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। चीफ सेलेक्टर का PSL रिजर्व पोल में अज खुद रद्दोबदल। फ्रेंचाइज मालिकान नाराज। जराए का कहना है फ्रेंचाइज मालिकान ने मुशावरत के साथ 15 नाम फाइनल किए थे। चीफ सेलेक्टर ने इमामुल हक, जाहिद महमूद, सैयद शकील और उमैर बिन यूसुफ को फहरिस्त से निकाल दिया। चीफ सेलेक्टर ने खालिद उस्मान, मुसद्दिक, सलमान अली और उमर अमीन के नाम शामिल कर दिए। PCB का कहना है फ्रेंचाइज मालिकान जो खिलाड़ी मांग रहे थे वो टेस्ट कैंप का हिस्सा हैं। फ्रेंचाइज मालिकान का कहना है PCB ने हमें पहले से एतमाद में क्यों नहीं लिया। फ्रेंचाइज मालिकान को खिलाड़ियों की तब्दीली का इल्म PCB के एलामिये से हुआ। PSL 7 की कैसी है तैयारी। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर में कप्तान बताएंगे बारी बारी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बने स्पेशल प्रोग्राम में मेहमान। कहा वर्ल्ड कप में इब्तदाई विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम डर गई थी। मैच से पहले शाहिद आफरीदी से फ़ोन पर टिप्स ली थी। ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका मध्य मुकाबले। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड आमने सामने। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल के तकरीबात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पहली फिल्म तीफा इन ट्रबल की स्क्रीनिंग का इफ्तिताह किया। फिल्म के हीरो अली जफ़र, अदाकारा हरीम और पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद की भी तकरीब में शिरकत। फवाद चौधरी की अरब अमारात के इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं UAE में उर्दू समझने वाले भी बहुत हैं और पैसे वाले भी। यहाँ पाकिस्तानी फिल्मों के लिए बड़ी और अच्छी मार्केट है।
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2164 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 216 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے. ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.